Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 11, that is mensuration. Mensuration, which includes the measurement of the perimeters and areas of the geometrical shapes. So, my dear students, today, first of all, we will write to know about the formulas which are important to know how to find out the area of different geometrical shapes. So first of all, the formula I am going to write on. First one, that is area of a rectangle. You know very well, area of a rectangle is nothing but L into B, that is equal to the product of the length and breadth. Second one is area of square, that is equal to side into side. Now similar way I will mention the perimeter of rectangle. This geometrical shape is showing you the symbol as a rectangle, so its perimeter is nothing but 2 into L plus B. Next one is the perimeter of, you all are knowing, perimeter of square with all equal sides, that is equal to 4 into side. Clear everybody? So these are the formulae which are most important. We will make the use in the present exercise. Next one is the area of a circle. Area of a circle in class 7th you have studied about the area of circle is nothing but pi r square. Clear? Next is the circumference of circle. Circumference of circle is nothing but 2 times pi r. Suppose this is a circle I am drawing here. So whatever the possible distance we will cover from point A, then after I will reach here at point A only. So this distance is nothing but 2 pi r. This distance is called 2 pi r. Now if I am taking half of the circle, so its perimeter will be 2 pi r over 2. So I will write circumference of semicircle. Semicircle perimeter equal to 2 pi r over 2. So that is coming pi r only. This I have circled the things, that is coming pi r. If I have circle this type, this way, then its perimeter will be equal to be pi r. This distance, this is called pi r. I am mentioning here pi r, and this is nothing but the d, diameter plus d. So this will come across the total perimeter of a circle, which is half, and its diameter is mentioned. Clear everybody? So this is all about our first exercise 11.1, in which we will make the use of different formulas I have written here. So all of you make sure about all these important formulae. Then after we can solve the exercise properly. So let me see the exercise now बेटा. हमारे पास जो exercise है, exercise 11.1, everybody we very alert here. So all of you have to open your textbook. The first question here, a square and a rectangular field. In the question number 1, one of the square is given and one rectangle is given in the question. This type, the figure is given, square and one of the rectangle is given. Both have same
पेरीमीटर, इन दोनों फिगर का पेरीमीटर सेम है। सो विच वन will have greater area? So let me see the dimensions given in the question. In square, each side 60 meter given, I have written on the paper here, and in rectangle length is 80 meter and breadth is not given. So my dear student, if I will solve it, then I will get according to the question given. what given बेटा? क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to perimeter of rectangle. This is the condition given. So the formula we have to use here is 4 into side is equal to 2 times L plus B. So that comes 4 into 60 is equal to 2 bracket L value is 80 plus breadth is unknown. So I have written this way. So 2 and 4 cut out, so it will be 120 is equal to 80 plus B. So I will transpose the term 120 minus 80 equal to B, which implies breadth is coming as 40 meter. What is the value of the breadth coming, student? Breadth of this figure is coming as 40 meter. Now we have to compare the area. Now area of square equal to side into side, that will be equal to 60 into 60, that will be 3600 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ से तो मैंने ये आपको एरिया ऑफ किसका फाइंड कर दिया बेटा? स्क्वायर फाइंड कर दिया. अब मैं इसी के साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करूँ तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी. सो दैट विल बी नथिंग बट 80 इंटू 40 इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर. अब इन दोनों एरिया में से कौन सा एरिया ग्रेटर है बेटा? इन दोनों एरिया में से कौन सा एरिया ग्रेटर है? स्क्वायर. सो वी विल नो एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस वे. So this is our final result, the solution of the question number 1. So this is all about the question we had given here. Now next beta, question number 2. In the question number 2, Mrs. Kaushik has a square plot with sides given as. एक मेरे पास मिसिस कौशिक का जो घर है वो कौन सी शेप का मेंशन्ड है बेटा क्वेश्चन में? जो प्लॉट लिया हुआ है उसका साइड जो है वो 25 मीटर है. ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल एज यू नो. नाउ मिसिस कौशिक ट्राइंग टू मेक वन हाउस इनसाइड द प्लॉट. इस पार्ट के अंदर उसका घर बनेगा और ये जो शेडिड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, दिस शेडिड पार्ट नथिंग व्हाट द एक्स्ट्रा पार्ट दैट वी कैन से इट इज अ गार्डन डेवलप्ड एरिया एंड द साइड ऑफ दिस इनर रेक्टेंगल आर गिवन 20 मीटर एंड 15 मीटर. So what thing I can observe here? Given side of square plot equal to 25 मीटर. मुझे इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों? मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है कि जिस पार्ट में मिसिस कौशिक ने गार्डन को डेवलप करना है
उसका एरिया कितना होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस आउटर पार्ट का एरिया निकाल लूँगा, फिर इनर पार्ट का एरिया निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। तो ये मेरे पास बनेगा बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 25। वो कितना बनता है मेरे पास 625 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट थिंग आ गया यहाँ से। अब फॉर हाउस, ये पार्ट कैसा है बेटा, इट इज़ रेक्टेंगुलर। इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 15 मीटर। सो एरिया विल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। वो कितना हो जाएगा 15 इंटू 20, 300 मीटर स्क्वायर। मेरे पास जो रेक्टेंगुलर पार्ट था, जितने पार्ट में घर बन रहा था, उसका एरिया हो गया मेरे पास 300 मीटर स्क्वायर। अब मुझको क्या करना है बच्चों, अब इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है गार्डन डेवलप करने की। सो आई विल राइट एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो वो कितना बनेगा 625 माइनस 300 इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। मतलब ये एरिया जो है वो, ये एरिया जो है वो एरिया है जहाँ पर वो ग्रास डेवलप करेगी। अब कॉस्ट दिया उसका, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹55। तो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी 325 मल्टी कर दूंगा मैं 55 के साथ। तो ये मेरे पास बनेगा, आई एम मल्टीप्लाइंग हियर, लेट बी सी, क्रॉस हियर, 5 7 8 7 1 17,875 rupees will be the total cost for developing the garden. Clear everybody? So this was our question number 2. Now question number 3, my dear students. Question number 3 is very interesting question if you analyze the figure properly. In the question number 3, the shape which is given, I will tell you what to do. ये जो शेप मेरे पास दी है, ये पहले देखो, ये अंदर की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है और इसके एंड्स को एक सर्कुलर पार्ट में टर्न कर दिया है। सेमी सर्कुलर पार्ट्स आर बिल्ट एट द कॉर्नर। अब मुझे क्या बोलता है वो क्वेश्चन में, क्या करना है मुझे, द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। मुझे एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हमारे पास इस फिगर का जो टोटल लेंथ है वो कितना दे रखा है, 20 मीटर टोटल लेंथ दिया है और इसका जो ब्रेड्थ है इट इज़ 7 मीटर। अगर ये सर्कल है 7 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ तो 3.5 उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। कितनी होगी रेडियस, 3.5 विल बी द रेडियस ऑफ दिस फिगर। नाउ अगर मैं रेक्टेंगुलर पार्ट को चूज करता हूँ तो इसकी लेंथ बच जाएगी 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मतलब 13 मीटर विल बी द टोटल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। सो पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट केस में एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या होगा, सो एरिया जो होगा वो रेक्टेंगल का एरिया होगा और ये दो सेमी सर्कल मिल गए हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये सेमी सर्कल और ये दो सेमी सर्कल को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
सर्कल। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है और रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए लेंथ दिया है बुक में, वो है 13 मीटर और ब्रेड्थ दिया है वो है 7 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी L इंटू बी इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया। अब फॉर सर्कल, सिमिलरली फॉर सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू इसकी आर की वैल्यू है, इसकी जो रेडियस है वो है मेरे पास 3.5 मीटर। तो ये मैं लिख दूंगा 35/10 इंटू 35/10 फर्दर 7 5s am right and 2 5s 7 5s 2 11s। तो ये मेरे पास कितना बनेगा बेटा, अगेन 5 2s बीइंग कैंसिल आउट, 77/2 दैट विल बी नथिंग बट 38.5 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये मेरे पास टोटल करके बनेगा बच्चों 91.00 प्लस 38.50। तो ये प्लस कर देता हूँ मैं 05.9, this much will be the area of the given part which is our figure of circle by joining the two semicircles and one of the रेक्टेंगल इंटीरियर। अब दूसरा जो पार्ट है बेटा, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मुझको उसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। सेकंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर है, तो बच्चों यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, सिर्फ जो ब्रेड्थ है उसको मुझे एक्सक्लूड कर देना है। तो ये मेरे पास सबसे पहले क्या बनेगा, ये जो लेंथ बनेगी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू बी 13 प्लस 13 क्लियर, प्लस ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, ये जैसे पूरा सर्कल बन गया है तो इसका पेरीमीटर होता है बेटा 2 पाई आर। तो ये मेरे पास बना 26 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू है बेटा 35/10। तो जो भी हमारे पास पॉसिबल हमसे कैंसिलेशन होता है हम कर देंगे 7 5s 2 5s, ये और 5 भी कट, तो मेरे पास ऑब्वियसली कितना बचेगा 26 प्लस 22, वो कितना होता है 48 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर। ये व्हाट इज इट बेटा, पेरीमीटर ऑफ द whole figure in which the breadth of the rectangle are not included because this part we need not to cover. Then after question number 4 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। Question number 4 you people will do as homework. Now question number 5 is the most important question here. If you see question number 5, एक चींटी है, एक चींटी जो है वो डिफरेंट शेप्स को मूव कर रही है और वो शेप्स आपके सामने मेंशन्ड है बेटा, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये शेप हैं, इस तरह से शेप्स हैं। 3 स्टेप्स में एक चींटी को इस शेप को उसने कवर करना है। तो आपके पास जो डायग्राम में फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी में जो भी मेंशन है, तो इसका जो डायमीटर है वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले पार्ट में
बेटा ये देखो पहले ये क्या है, फॉर ए पार्ट। बेटा ए पार्ट में जो मेरे पास जो भी चीज़ है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ए पार्ट में जो चींटी मान लो यहाँ से चल रही है, यहाँ से चलेगी तो यहाँ तक आएगी, तो इतना पेरीमीटर कितना होता है, ये पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस ये पूरा डिस्टेंस चलेगी डी, तो वो कितना बनता है, पाई का वैल्यू आपको मालूम है। अब यहाँ पे डायमीटर कितना था, डायमीटर था 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 1.4, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4। अब 22/7 इंटू आर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 14/10 प्लस डी की वैल्यू है 2.8। अब वो जो कैंसिलेशन होती है वो कर देंगे, ये बना 44/10 प्लस 2.8, तो विच इम्प्लाइज दिस विल कम टू मी 4.4 प्लस 2.8, मतलब ये आपके पास बना 7.2 सेंटीमीटर फॉर पार्ट ए। अब जो मैंने आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई है, एक बार मैं आपको रफली यहाँ पे बता देता हूँ। जो पाई आर की वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन में, पाई आर मतलब 22/7 इंटू 14/10, ये जो वैल्यू मेरे पास बन रही है वो बनती है हमेशा 4.4 सेंटीमीटर। तो ऑल द टाइम इन द क्वेश्चन आप लोगों को जब भी पाई आर की वैल्यू मिलेगी तो उसको आप लोगों ने क्या लिख देना है 4.4 विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हमारे पास सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर का ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ये डिस्टेंस पैरेलल 1.5 सेंटीमीटर दिया है और ये 2.8 दिया है, इसका मतलब ये जो डायमीटर बनेगा ये भी 2.8 होगा। अब मेरे पास जो डिस्टेंस है इसकी पेरीमीटर जो बनेगी वो क्लियर डिस्टेंस 1.5 प्लस ये वाला डिस्टेंस 2.8 प्लस ये वाला डिस्टेंस 1.5 प्लस अब ये जो डिस्टेंस है कर्व्ड डिस्टेंस, ये इसको मैंने क्या नाम दिया था पाई आर। अब ये बनेगा मेरे पास 5.8 प्लस, अब पाई आर की वैल्यू क्या बनी थी 4.4, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको रफली ये वर्क जो है वो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया ना, ये बनेगा 10.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट का पेरीमीटर जो है बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब पार्ट नंबर 3 में ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी है 2 सेंटीमीटर और ये सर्कल का डायमीटर दिया है वो भी हमें करना, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, सी पार्ट ये बी है और ये सी पार्ट के पी इक्वल टू ये 2 प्लस 2 प्लस अब ये डिस्टेंस कितना है पाई आर, मतलब 4 प्लस ये पाई आर की वैल्यू थी 4.4, सो पी इज कमिंग 8.4 centimeter. So I hope you all have enjoyed this session regarding our exercise 11.1, and I hope you all people will practice the questions properly in a very effective and systematic way. It is my blessing to all of you people so that you can score full mark in our annual examination. So till then, bye, thank you. Okay.